we have read about the preparation of the various acid derivatives. Among those acid derivatives, we have discussed acid halides, we have discussed acid amides, esters, and anhydrides. How these can be prepared. Why these are important? All of them, they are having their own use in the synthetic chemistry. What some of them, they are having their use in the medicine synthesis. The simple tablet of the PCM, that is paracetamol, it contains acetylated product or acetylated group. Chloromycetin, that also contains a acyl group present in it. So acyl group is having its own importance. It is mostly there in the many of the medicines as a group. So we use a acetylating agent whenever we have to prepare or synthesize these medicines. So we are having these type of or these class of the molecules which can act as an acetylating agent. One is the acetic anhydride, another is the acyl chloride, another one is the acetamiide, another one is the esters. All of these, they contain the acyl group. Here the circle denotes acyl group in each of these that is present there. Acyl group or the acylamine, it is much more stable. It is stable because of resonance, and you can see the resonance here. If it breaks from here, the positive charge is over the carbon. So positive charge, it is balanced by resonance from the oxygen. It is forming this type of ion that is known as the acylamine. So whenever we have to discuss the acetylation, we discuss how the bond scission is taking place, how the bond breakage is taking place or cleavage is taking place, and as it is vivid from here that in order to have the acetyl group from these, we have to break the bond from these positions. Now let us check one by one that which of them is having what type of bonding here. जो बैक ये है तो यहाँ पर जो है यहाँ से बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है. तो वन बाय वन इसको जो वो यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस तरह के बॉन्डिंग जो इनमें ब्रेकेज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. पहले है एसाइल हैलाइड की डिस्कशन. एसाइल हैलाइड में रेजोनेंस पॉसिबल है और क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होते हैं. सो इट कैन डोनेट ए लॉन पेयर हियर एंड देयर कैन बी ए रेजोनेंस जस्ट लाइक दिस वे. तो इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल है. तो इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड का मतलब इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द बॉन्ड हेयर. दूसरा फैक्टर क्या है यहां पर कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है. तो क्लोरीन जो है उसके पास इंडक्टिव फैक्टर, तो इंडक्टिव फैक्ट की वजह से ये पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो सकता है. तो दो यहां पर जो फिनोमेना ऑपरेटिव है, एक रेजोनेंस और दूसरा इंडक्टिव फैक्ट. जब भी दोनों में कंपटीशन हो और एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो, जो रेजोनेंस का फ्लो है वो ऑक्सीजन की तरफ है या कार्बन की तरफ है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्लोरीन की तरफ है. तो दोनों में जो वो रेजोनेंस प्रेडोमिनेंट होता है, इट मीन्स देयर कैन बी ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द कार्बन एंड द क्लोरीन. So it is not easy to break the double bond here. Simultaneously, same type of resonance I can see in case of the amides, and same type of resonance is possible in case of the esters also. एस्टर में भी जो है वो ऑक्सीजन डोनेट कर सकती है. इस तरह से एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज आता है. अब इनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रेजोनेंस बोलता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करना हो तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है. इट मीन्स
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा लेना देना यहां पर है नहीं, लेकिन किस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल और किस तरह का नहीं पॉसिबल है वो यहां डिस्कस किया जा सकता है। क्लोरीन और कार्बन के बीच में ऊपर जो डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन में 2p ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि 2s2 और 2p2, क्लोरीन में 3s और 3p आएगा, सो 3s2 एंड 3p5। तो इसका मतलब इसका 3p ऑर्बिटल जो इसके 2p ऑर्बिटल से जो है वो ओवरलैप करेगा। इन केस इट इज नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल, कार्बन 2p ऑर्बिटल, इन केस इट इज कार्बन 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन बिलो इट इज 2p ऑर्बिटल। तो इनमें जो है एमाइड में भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, एस्टर में भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहां कार्बन का 2p ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप या डबल बॉन्ड जब भी बनना है, इट शुड बी बिटवीन द ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी। लेकिन यहां पर क्लोरीन का 3p है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और कार्बन का 2p है तो उसकी एनर्जी कम होगी। सो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द overlapping orbitals here to form the double bond. So this type of resonance is not a stable resonance in case of the acyl halide. बाकी इस एमाइड में भी रेजोनेंस स्टेबल हो सकता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं। एस्टर में भी जो है वो स्टेबल है क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन और कार्बन जो ओवरलैप कर सकते हैं 2p, लेकिन यहां पर जो है एसाइल हैलाइड में यहां पर कार्बन और क्लोरीन में दोनों के एनर्जी लेवल्स डिफर कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज नॉट इफेक्टिव रेजोनेंस इन केस इट इज द एसाइल हैलाइड। तो इसका मतलब है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रोमिनेंट हो सकता है, ना कि रेजोनेंस इफेक्ट। सो bond scission can take place from the acyl halide. Then let us discuss some more. In case of nucleophilicity, all we are having these type of acetylating agent. इनमें काउंटर आयन की स्टेबिलिटी भी डिसाइड करती है कि कौन बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट है, कौन बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट नहीं है। तो काउंटर आयन चेक करना हो तो यहां से एसाइल आयन को यहां से अगर मैं मिटा देता हूं तो ये मेरे पास काउंटर आयन बचते हैं। वन इज एसिटेट आयन, अनदर इज द क्लोराइड आयन, अनदर वन इज द एमाइड, एंड लास्ट वन इट इज द मिथॉक्सी एनाइन दैट इज देयर। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो कोई ना कोई उसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए। इसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, वो क्या है? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है एसिटेट आयन में। So because of resonance, this anion is highly stable and that is also stable. ऐसा नहीं कि Cl नेगेटिव स्टेबल नहीं होता है, NH2 नेगेटिव कम स्टेबल होता है, वेरी लेस स्टेबल। मिथॉक्सी आयन बहुत कम स्टेबल होता है। तो ये दोनों आयन जो हैं वो किससे बनेंगे? एक अमोनिया से बना हुआ है और दूसरा मिथेनॉल से बना हुआ है। तो ना तो मिथेनॉल एसिड एक्ट करता है ये एनाइन प्रोड्यूस करने के लिए, ना अमोनिया एसिड एक्ट करती है ये एनाइन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन दोनों को तो भूल जाओ। Cl नेगेटिव आयन स्टेबल है लेकिन फिर भी इसमें क्या है? रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कहां है? इसमें है। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो सबसे बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट जो कौन सा है? एसिटिक एनहाइड्राइड। रीजन बीइंग द एनाइन फर्निश्ड बाय इट इज हाईली स्टेबल एंड in another case anion furnace it is not so stable, so that is why it is the best acetylating agent. और जो फर्स्ट केस डिस्कस किया हमने यहां पर कि इस तरह के जो बॉन्डिंग है वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो एस्टर के केस में अगर डिस्कस करना हो तो एस्टर के केस में दोनों तरफ से जो है उसमें, सॉरी एनहाइड्राइड के केस में बोथ साइड जो रेजोनेंस पॉसिबल है। तो एक साइड ऐसी आ सकती है जहां से एसिटाइल आयन जो है वो रिलीज हो सकता है। तो इसीलिए एस्टिक एनहाइड्राइड जो वो बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट वन इज द रिफॉर्मेटेस्की रिएक्शन। व्हाट इज दिस? whenever carbonyl compounds just like this acetone, it is being treated with alpha bromo ester
that is the ester CH2COOR, and in the alpha position there is a presence of the bromine, so that is the alpha bromo ester. So whenever carbonyl compounds, they are treated with the alpha bromo ester in presence of the zinc in ether, then we are getting the beta hydroxy ester as the product. So that is the product beta hydroxy ester. How the reaction proceeds? Reaction proceeds by the simple addition. The carbonyl carbon of the carbonyl compound, it is changing into OZNBr, and the fourth bonding, it connects with the ester wherever the bromine is being substituted. So by the hydrolysis we are getting this product. Let us see what is the mechanism of the product. So reaction. First of all, this reaction also takes place with the help of the aldehyde. So aldehyde, when react with the bromoester in presence of zinc ether, it gives beta hydroxy ester. Now let us see what is the mechanism of the reaction. So first of all, bromoester, it adds zinc. तो जहां पर ब्रोमीन ऐड है, और ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड है, वहां पर जिंक की एडिशन हो जाएगी. So it is zinc and that part is alkyl. So alkyl zinc bromide that is being formed. It is alkyl zinc bromide. Now from here, as zinc is added here, so the polarity of the carbon changes. How the polarity of the carbon changes? See here, it is Br. Br will be negative, कार्बन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये हेलोजन है तो ब्रोमीन नेगेटिव होगी और कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लेकिन जैसे ही जिंक की एंट्री हुई यहां पर, तो जिंक क्या है, मेटल है, मेटल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव. तो 1 पॉजिटिव इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द ब्रोमीन. हियर 1 पॉजिटिव इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द कार्बन नेगेटिव. तो जो कार्बन यहां पर पॉजिटिव था वो कार्बन यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. सो दिस इज चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द अल्फा कार्बन because of the addition of the zinc. So this negative carbon here that attacks this carbonyl center. So shift of this bond here. So zinc and bromine get attached here, and this carbon of the ester, alpha carbon of the ester, it get attached to the carbonyl carbon center. So as you will hydrolyze it, we will get the beta hydroxy ester as a derivative. Next is the Perkin condensation. What is Perkin condensation? Whenever benzaldehyde, it is treated with the acetic anhydride. So we are discussing as a part of the acid derivative. So that is the acetic anhydride. In presence of a very weak base here, it is sodium acetate. That is being utilized because when you will hydrolyze it, it will give the acetate ion that is acting as a base. So it gives this condensed product, and then condensed product it is changing into the cinnamic acid. It is changing into cinnamic acid. This is cinnamic acid plus acetic acid. How the reaction proceeds? First of all, sodium acetate, it breaks down as acetate ion plus Na positive. This weak acetate ion, it grabs a hydrogen from the anhydride. तो ये anhydride का CH3 पार्ट है, यहां से एक हाइड्रोजन ये रिमूव कर लेगा. इट विल चेंज इनटू एसिटिक एसिड प्लस इट विल चेंज इनटू ए एनाइन ऑफ anhydride. इट इज CH2 नेगेटिव COO. दैट इज द anion of the anhydride. Next, this anion of the anhydride, it reacts the carbonyl carbon here. So that is the benzaldehyde. वहां पर ये carbonyl center पे react कर रहा है. So that bond shift to the upper side. It is making O negative, and that is CH2. It get attached to this one. As there is a presence of the acetic acid in the medium, so H positive ions are there. So H positive ion changes it into OH. Then acetate ion, it is able to grab the again alpha hydrogen from the acetic anhydride part. As it grabs from alpha hydrogen from here, there is a left bond. Bond means negative charge. So negative charge enter inside, and from here OH ions they are being relieved.
So that changes into the ester of a anhydride of a cinnamic acid and acetic acid. That is anhydride of cinnamic acid and the acetic acid. As you will add water, one acid will separate and another acid will separate. So one of the product, it will be the cinnamic acid, another as the acetic acid. From the examination point of view, the reasoning question can be there that which of them is the best acetylating agent. You have to discuss the various aspect, mainly two aspects कि एनाइन किस में ज्यादा स्टेबल है, एक वो वाला आ गया, और किस में डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, किस में सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, वो आप जो वो डिस्कस कर सकते हैं. इन दो फीचर्स के बेस पर जो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन डील करते हैं दैट विच ऑफ देम इज बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट एंड विच ऑफ देम इज लीस्ट. वैसे एसिटाइल क्लोराइड जो है बहुत मोस्टली यूटिलाइज भी होता है, लेकिन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन इतना बिग्रस होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है एसिटाइलेशन को. और दूसरा, जो एसिटाइल क्लोराइड है वो मोनो एसिटाइलेशन नहीं देता है. जिस भी कंपाउंड को आप एसिटाइलेट करना चाह रहे हैं वहां पर 2 टाइम्स और 3 टाइम एसिटाइलेशन प्रोड्यूस कर देता है, जबकि एसिटिक एनहाइड जो है वो सिंगल टाइम एसिटाइलेशन होती है उसमें, और रिएक्शन बहुत ज्यादा बिग्रस नहीं है. तो वेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट जो उनमें क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है. दूसरा, दो इसमें नेम्ड रिएक्शन है. तो नेम्ड रिएक्शन आपको पता है एग्जामिनेशन में 3 नंबर का जो है क्वेश्चन आराम से, व्हाट इज पर्किन कंडेंसेशन, और दूसरा व्हाट इज रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन. तो विद मैकेनिज्म जो है, विदाउट मैकेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है. विद मैकेनिज्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे.